So hello champions. Recently I've seen there is a lot of speculation about which college is actually better. Is it IMU Kolkata or is it Tulani Maritime University? So in this video, for once and for all, I'm going to end this conversation and I'm going to tell you which college is actually better. So let's get into it. I'm Abir Srivastav and I'm a fourth year student right now of Indian Maritime University Kolkata campus. I'll try to make this conversation and make this scenario of ours completely unbiased, and I'm going to tell you what is the reality according to me. So let's start with the first point. The first point according to me is fees. Fees in Indian Maritime University is going to be about 9 to 12 lakhs, and fees in Tulani Maritime University is going to be about 20 to 22 lakhs. So here itself there is a huge difference in fees, where you can say the fees is almost double. So this is going to play a huge role in how your experience is going to be by the end of your 4 years. See, what happens actually is, देखो यार, होता क्या है कि बहुत सारे लोग फोर्थ ईयर तक जाते जाते शिपिंग को छोड़ना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती शिपिंग, क्योंकि उसमें भाई पैसा एक बात है, मनी इज़ वन थिंग वेयर जस्ट बिकॉज गेटिंग अट्रैक्टेड टू मनी यू आर गोइंग टूवर्ड्स इट. पर अगर आप देखो तो आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस जॉब में, और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत होती है. तो इस वजह से बहुत सारे लोग फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर के मिड्स में ही ये सोच लेते हैं कि हाँ यार वो गवर्नमेंट जॉब करेंगे या फिर वो MBA में जाना चाहेंगे. यहाँ पे आपका 9 से 12 लाख पेमेंट करना और एज अ फीस and paying 20 to 22 lakhs is going to make a huge difference. Why? Because paying 10 lakhs is going to be not going to pressurize you that much, and you can still make that decision of not going for sailing and going for a government job rather. But if you talk about Tulani, अगर आपने एक बार 22 लाख दे दिए तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स पे और आप पे इतना प्रेशर हो जाएगा कि आप फिर सोच भी नहीं सकते कि आप कोई और प्रोफेशन में चले जाएं, या फिर आप किसी भी तरीके से अपना प्रोफेशन को स्विच कर लें, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. ये मेरे ख्याल से फ़ीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग को समझना चाहिए. द सेकंड थिंग अकॉर्डिंग टू मी इज़ प्लेसमेंट्स नो डाउट तुलानी में बहुत ही अच्छे हैं. मुझे जितना पता है, मेरे कुछ दोस्त हैं तुलानी में जिनसे मैं बात करता हूँ, एंड दे हैव टोल्ड मी दैट अबाउट आउट ऑफ 240 कैरेट्स अबाउट 180 कैरेट्स बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर गेट्स प्लेस्ड इन रियली गुड कंपनीज in Stena Shipping and Chelaram Shipping and Maersk Line and all of those companies, all of those really giant companies. I'll let you know of actually the reality of these giant companies and what is the good thing about them and what is the bad thing about them. Keep watching my videos and I'll let you know about them as well. So yeah. और अगर हम लोग इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी कंपनीज आती हैं, लेकिन वहाँ आपकी प्लेसमेंट आजकल गिर गई है थोड़ी सी, ये बात सच है. और यहाँ पे प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 120 से लेके 140 के बीच में कैंपस में प्लेसमेंट बाय द एंड ऑफ फोर्थ ईयर हो जाती है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. लेकिन ये भी है कि जब हम आपके बैच जो होते हैं वो 250 कैरेट्स के हो जाते हैं, 260 कैरेट्स के हो जाते हैं, तो यही चीज़ काफ़ी टफ हो जाती है. लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे जूनियर्स बैच में, जो मेरे इमीडिएट जूनियर्स हैं, उन लोग के बैच का स्ट्रेंथ जो था दैट इज़ क्लोज टू 220 और 200 कैरेट्स. सो इट हैज़ बीन रियली ईजी फॉर देम. आई फील इट्स गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू गेट प्लेस्ड by the end of their fourth years, and also even after getting passed out from this college. So the next topic that I want to talk about is the IQ level. What happens is that in IMU Kolkata, because some good minds come to IMU Kolkata, so the average IQ level is better than any other private college that you talk about, be it Tulani or Manet or any other college. So the conversations that cadets have, the type of the type of things they discuss about is way better if you talk about any other cadet or talk about any other college. So that is also going to help you in this journey of 4 years, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि you are defined by the company you keep, and if your company is going to be good, so you'll get the advantages of it pretty soon, I guess. उसके बाद हम लोग स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं. स्टडीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि दोनों कॉलेजेस में डिस्कस करना चाहिए. टीचर्स की जब तक बात करें तो टीचर्स मुझे लगता है कि दोनों कॉलेजेस में बहुत ही अच्छे हैं. गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर्स आपको भी पता है काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में तो उनको सैलरीज़ भी ज़्यादा मिलने वाली हैं. तो लानी में उनको सैलरीज़ भी ज़्यादा मिलने वाली हैं एज अ टीचर, पर वो स्टिल अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो मतलब एक्चुअली वो शायद अच्छे होंगे, इसीलिए पढ़ा रहे हैं. अगर हम लोग वर्कशॉप्स की बात करें तो हाँ, वर्कशॉप्स में तुलानी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है. वो लोग काफ़ी स्पेंड करते हैं और काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं अपने वर्कशॉप के इक्विपमेंट्स पे.
and being a government college you have to pay you know in some way कि वर्कशॉप्स हमारे कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे तुलानी में हैं, और जो बच्चे हैं यहाँ के उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मशीन्स पे काम करने की, उन्हें ओवरऑल करने की, लेकिन उतनी नहीं जितनी वर्कशॉप्स में तुलानी के वर्कशॉप्स में मिलती है. इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सपोजर, तो एक्सपोजर मैं कहूँगा कि दोनों कॉलेज में से काफ़ी अच्छा है. लेकिन अगर आप बात करें IMU कोलकाता की, तो हाँ ये बात सच है कि in IMU Kolkata being a government college the rules are pretty lenient, so you'll get opportunities in second year, third year and in fourth year of going outside the campus and exploring the city of Kolkata, talking to new people, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉलेज लाइफ का. जब आप स्कूल से निकलते हो, स्कूल में आप नई होते हो, आपको नहीं पता है दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में what are the kind of people that actually are in this world. तो जब आप असली मार्केट में जाते हो और आप असली लोगों से मिलते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. और बीइंग अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट मुझे पता है कि मैं 12th ईयर में क्या था और मैं फोर्थ ईयर में क्या हूँ और क्या डिफरेंस आया है मेरे में. तो मेरे को लगता है कि ये जो इंटरेक्शन होता है आपका सिटी से, लोगों से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे लोगों से जो आपसे एग्री नहीं करते चीज़ों में, या फिर आप उनकी थॉट्स आपसे बहुत अलग होती है. क्योंकि आप जब एक ऐसे कॉलेज में होते हो जहाँ पे सारे लोग मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो at the end of the day all of them are like minds, all of them are going to be thinking in a horse way, thinking just like this. They don't know anything else about the industry and they don't know all other professions. वहाँ पे काफ़ी मदद होती है जब आपको एक्सपोजर मिलता है बाहर की सिटी का. लेकिन तुलानी में if you are a first year, second year, third year or a fourth year, you won't get opportunities of going outside the campus unless it's a Saturday or a Sunday. बस उसी दिन कॉलेज कैंपस से बाहर जाने को बच्चों को मिलता है, और सैटरडे को तो हाफ डे होता है, तो बच्चे घूम फिर के थोड़ा आ जाते हैं. संडे ही एक दिन होता है जिसमें वो घूम पाते हैं, तो वो कुछ सीख नहीं पाते. दे कैन नॉट एक्सप्लोर द सिटी एंड लर्न फ्रॉम इट इन एनी वे. तो ये मुझे लगता है एक्सपोजर एक बहुत बड़ा रोल है, और ये रियलिटी है जो कि दोनों कॉलेज की हमको समझनी होगी. अगर हम लोग कैडेट्स की बात करें, तो जैसा मैंने बताया कि हाँ, क्योंकि IQ लेवल ऑफ कैडेट्स का दिमाग और IQ लेवल थोड़ा अच्छा होता है, तो कन्वर्सेशंस और डिस्कशंस भी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, और वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, लेट्स कम डाउन टू स्पोर्ट्स. व्हाट हैपेंस इज इन स्पोर्ट्स, तुलानी की फैसिलिटी ऑलमोस्ट अच्छी है. ये तो बहुत काफ़ी अच्छी है. आई एक्सेप्ट दैट. वाई? बिकॉज it is asking you to pay 22 lakhs, and it has to give you some really good football grounds and basketball courts and all of that stuff. But if you talk about our college is giving you really good facility when it comes to sports. There is a very competitive nature. There are tournaments. All the tournaments that happen in Kolkata, you'll get an opportunity to play in all of them. I'm afraid that is not going to happen if you are a student of Tolani Maritime University. So that is a good thing. If you are a sports person, you'll get really quite a lot of opportunities to play in various tournaments outside your campus particularly. जब हम लोग तुलानी की बात करते हैं, तो तुलानी में आपको सिर्फ विंटर हाउस या इस टाइप की चीज़ें ही खेलने को मिलेंगी, जहाँ पे आप अपने ही दोस्तों के साथ मैच खेल रहे होंगे. तो वो उतना कम्पिटिटिव नहीं होता है, ये तो हम सब जानते हैं. तो ये बात मैं बस बताना चाहता था आप लोग को. लेट्स कम डाउन टू द अदर टॉपिक. या सो एज आई सेड, इंटरेक्शन विद द सिटी. इंटरेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब आप एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बाहर जाने की, आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बाहर के लोगों से बात करने की, जो शायद कोई बैचलर इन आर्ट्स कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है. जब आप उन लोग की बातें सुनते हो, उनकी चीज़ें समझते हो, तो आपको काफ़ी कुछ पता चलता है. क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं सेकेंड ईयर में था, मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे मरीन इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ दैट पीपल हैव आउटसाइड. और मैं कोशिश करूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं शायद आप लोग को वैल्यू दे पाऊँ. जो मैंने गलतियाँ की, शायद मैं प्रिवेंट कर पाऊँ आपको वो गलतियाँ करने से, और मैं किसी तरीके से आप लोग को बता पाऊँ कि what are the things that you have to do when you are in a college and what are the things that you don't need to do, and it's better stay away from them. So yeah, Tulani में as you all know कि because moving out is not allowed unless it's a Sunday, so it's going to be pretty tough for you for interacting with various people and all of that stuff. And being on a highway, you won't get people around you. कोलकाता में क्या है कि सिटी के अंदर है हमारा कॉलेज, so there are a lot of opportunities of going out, and there are restaurants and good coaching centers and all of them, and people. What I mean is there are a lot of people when you leave this campus.
एंड दैट इज़ द गुड थिंग अबाउट दिस कॉलेज. व्हेन यू टॉक अबाउट तुलानी में क्योंकि हाईवे पे है तो यू वोंट गेट people around you when you leave the campus, and it's going to take hours before you go back to a city or before you reach a city and you could do something good. Hey man, I just wanted to remind you that if you liked my video, please press that like button and I'll come up with more amazing videos. And I won't tell you to share it with a lot of friends of yours, but मैं कहूँगा कि यार किसी एक आदमी को जो आपको लगता है कि वो रियली डिज़र्व करता है ये वीडियो देखना और ये कंटेंट उसको सीरियसली पसंद आएगा, then please send this video to that guy and I'll be more than happy, and thank you. Keep watching. So the next thing I want to talk about is alumni network. And if I talk about the alumni network of IMU Kolkata and Tolani, IMU being almost 70-year-old college and Tolani being almost a 30 or a 20-year-old college, तो होता क्या है कि क्योंकि हमारा कॉलेज इतना पुराना है और काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स उसने प्रोड्यूस किए हैं, इस वजह से ऑलमोस्ट हर शिपिंग कंपनी का जो हेड है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, वेसल मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, क्रू मैनेजर्स, ये सारे या चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आर कॉलेज. तो इसकी वजह से होता क्या है कि व्हेन यू बिकम अ थर्ड इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर, आर कॉलेज पास आउट्स आर वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स अस, और वो हम लोग की हर चीज़ में हेल्प करते हैं, एडवाइसेस के लिए हेल्प करते हैं, आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हेल्प करते हैं, हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं. तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि बहुत नेचुरल है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट तुलानी के पास आउट्स जो हैं वो क्योंकि तुलानी सिर्फ 20-year-old ऑलमोस्ट कॉलेज है, इस वजह से अभी वो लोग इतने प्रॉस्परस हो नहीं पाए हैं. अभी हेड्स और मैनेजिंग डायरेक्टर इतनी जल्दी होना, इट्स रियली वेरी टफ. लेकिन हाँ, तुलानी भी ग्रो कर रहा है, और तुलानी की एलुमनाइज जो है वो अभी तो नहीं, पर मेरे ख्याल से आने वाले 10 to 15 years में you'll see them at really good positions. If we talk about the alumni from different industries, तो एक अच्छी चीज़ हमारे कॉलेज में ये है कि because my college is a government institution, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शिपिंग छोड़ के MBAs और IAS और UPSC भी क्रैक करना पसंद करते हैं. And because of that, what happens is a lot of our pass outs are also IIM graduates, and they have cracked UPSC. Almost हर सेकेंड बैच में एक ऐसे हमारे पास आउट होते ही हैं जिन्होंने UPSC क्रैक किया है, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स अस एज वेल, जो कि हम लोग की भी मदद करना चाहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन एडवाइस कि इफ़ यू आर इनटू गवर्नमेंट जॉब्स एंड इफ़ यू वांट क्रैक UPSC और गो फॉर MBA, तब भी हमारा कॉलेज जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि यू विल गेट एम्पल टाइम इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर टू वर्क ऑन योर सेल्फ इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू सेल. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ माई बैच, जो कि सेल नहीं करना चाहते या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि हमारे एलुमनाइज उस इंडस्ट्री में भी हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट रूल्स in both of these colleges, IMU being a government institution and Tolani being a private institution, तो तोलानी के रूल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं. आप क्लासेस नहीं मिस कर सकते, आप आपको PT करना होगा, चाहे वो even if it is 6 in the morning or in the evening, you have to join both of these PTs and you have to do them no matter what. When you talk about, and because if you don't do that, there is something like credit score that they have, and because of which what happens is they are going to cut your marks in this credit score system that they have. It is unofficial, and with that they are going to punish you in some way. They are going to make you boiler suits, and they are going to make you stand in the heat of the sun, and वो कभी कभी आपको blacklist भी कर देते हैं अगर कोई सीवियर चीज़ हो जाए प्लेसमेंट्स के लिए. तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे. लेकिन जब आप मेरे कॉलेज की बात करते हैं, IMU कोलकाता की, सो हमारा कॉलेज रूल्स में लीनियंट है. वाई? बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज एडमिनिस्ट्रेशंस आर कंट्रोल्ड बाय स्टूडेंट बॉडीज़. तो इस एडमिनिस्ट्रेशन, आई मीन ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय स्टूडेंट बॉडीज़, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट लुक्स आफ्टर ऑल ऑफ दैट. तो उसकी वजह से क्या होता है कि रूल्स थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, एंड the PTs are a bit lenient. If you are into sports, then it's going to be easy for you to manage your PTs, because I particularly am a guy who plays basketball. तो मेरे लिए क्या होता है कि I don't have to play, I don't have to do PT. I can go prefer basketball. Playing basketball can be an option for me. तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप
यू नो you'll get opportunities कि आप क्लास में ना जाके आप लाइब्रेरी जाके भी पढ़ सकते हैं, आप रूम में भी पढ़ सकते हैं, आपको मौके भी मिलेंगे ऐसे। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से आपको मिलती है। या व्हेन आई द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज सीनियर जूनियर इंटरेक्शन। सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, सी बिकॉज तोलानी बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट प्राइवेट कॉलेज, तो होता क्या है कि देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स, और यही इंटरेक्शन है दैट यू नो एक्चुअली मेक्स यू। क्योंकि मैं जब 12th में था और 12th के बाद जब मैं इस कॉलेज में आया, आई वॉज एन इंट्रोवर्ट गाय, यू नो, आई डिडंट लाइक टॉकिंग टू पीपल। So because of my interaction with my seniors, all kind of there were different kind of seniors that I had. Because of that, what happened is that my introverted personality broke out into an extroverted personality. तो वो एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन था। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक बीइंग इन 4th ईयर, नाउ व्हेन आई लुक बैक टू फर्स्ट ईयर से मुझे सिर्फ अच्छी चीज़ें ही मिली हैं। मतलब उसने हर चीज़ में मुझे इम्प्रूव किया है, चाहे वो मेरा यू नो मेरी पर्सनैलिटी हो, मेरा हार्ड वर्क हो, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सब चीज़ में मुझे इम्प्रूव ही किया है मेरे फर्स्ट ईयर में। वो एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी मेरी फर्स्ट ईयर की, दैट इज़ व्हाट आई फील। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन हमारे कॉलेज में है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट तोलानी व्हाट हैपेंस इज कि वहाँ पे सिर्फ पीटीज़ हैं, पीटीज़ के बाद आपको ब्रेकफास्ट, देन क्लास से वापस, देन अगेन पीटी एंड देन स्लीप। सो यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ यू नो हैविंग कन्वर्सेशन विद योर सीनियर्स। तो उसकी वजह से भी ये एक्सपीरियंस आप मिस करेंगे, ये मैं बस कहना चाहता था। व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी इफ़ समवन इज़ नॉट विलिंग टू गो इनटू शिपिंग, तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऑलमोस्ट 20 to 30 एज आई सेड। एक बैच का हिस्सा जो है वो कभी कभी ये भी चाहता है कि दे डोंट वांट टू गो फॉर शिपिंग एंड यू नो दे वांट टू डू अ स्टार्टअप और एन MBA और यू नो a government job, go for a government job. So you'll get ample time to work on that as well. So that is a good thing that you know with Tolani you cannot do that. Why? Because after paying 20 to 22 lakhs, it is going to be very difficult for you because इतना प्रेशर हो जाएगा आपके ऊपर कि शिपिंग ना करना आपके लिए वो ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप 4th इंजीनियर 3rd इंजीनियर बन जाते हो लेकिन तोलानी से पढ़ने के बाद, लेकिन आप शिपिंग छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर 22 लाख्स का लोन है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर है कि आपके पेरेंट्स ने आप में 22 लाख्स इन्वेस्ट किए हैं, तो आप छोड़ के कोई और ऑप्शन MBA या कुछ भी आपके लिए वो करना बहुत ही एक टफ़ चीज़ है, तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन व्हेन यू स्टडी इन IMU कोलकाता कैंपस, इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू क्योंकि 9 to 10 लाख्स कंपेरेटिवली काफ़ी लेस है 20 लाख से। तो इसकी वजह से अगर आप चाहें तो यू नो यू कैन परस्यू सम अदर ऑप्शंस एज वेल। जब आप जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 250 कैरेट्स में ऑलमोस्ट 140 कैरेट्स प्लेस हो जाएंगे, तो जो लोग इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग MBAs करना, जो बाकी लोग जो MBAs और यू नो गवर्नमेंट जॉब्स में भी चले जाते हैं बाद में क्योंकि उन्हें यू नो शिपिंग पसंद नहीं आती, ये ऐसे भी काफ़ी लोग हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड विच कॉलेज इज़ बेटर, इज़ इट IMU कोलकाता और इज़ इट तोलानी। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप मेरा सजेशन मांगेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि तोलानी में, क्योंकि यू नो रहना खाना, मरीन इंजीनियरिंग का वर्कशॉप्स, ये सब अच्छा है। तो अगर आप रियली चाहते हैं 10-15 साल आप इसी इंडस्ट्री में रहने वाले हैं एंड यू नो देयर आर नो चांसेस दैट यू गोइंग टू चेंज योर प्रोफेशन इन एनी वे, तो मैं बोलूँगा कि देन गो फॉर तोलानी। एंड इफ़ यू हैव 20 lakhs टू इन्वेस्ट, देन आई वुड से गो फॉर तोलानी एंड you'll get your investments back most probably. Okay, I'm not really sure about that, but you'll get your investments back. But अगर आप IMU कोलकाता में हैं तो अगर आप प्लेस होना चाहते हैं then you'll have to work you know really well. आपको कम से कम जैसे ऑलमोस्ट 250 कैरेट्स में ऑलमोस्ट टॉप 100 टॉप 80 में तो आपको रहना चाहिए इफ़ यू आर रियली विलिंग टू गेट प्लेस्ड एट द एंड ऑफ 4 years। तो आप अगर आप 80 या 100 में हैं तो यू कैन रिमेन श्योर कि हाँ आप प्लेस हो जाएंगे। आप अगर अच्छे से पढ़ते रहें, अपने पेपर्स क्लियर करते रहें, यू नो इंटरेक्ट करते रहें, नेटवर्क बनाते रहें अपना अच्छे सीनियर्स में, then I can assure you that you're going to get placed in IMU Kolkata as well. So yeah, this is from my side, and let's hope you're going to make a good decision. Until then, remain legend.